Assalamu alaikum. My name is Aliza Ghazal and my registration number is 010. My group mates are Sayyid Murtajiz Hussain, Usman Ilahi and Komal Ehtesham. And the topic that we're gonna represent is gene cloning. Before going to gene cloning, we should know that what is genome. So, genome is the entire set of DNA instructions found in a cell. In humans, the genome consists of 23 pairs of chromosomes located in the cell's nucleus, as well as a small chromosome in the cell's mitochondria. A genome contains all the information needed for an individual to develop and function. So genome, basically it consists of all the genetic information, and it is mainly found in nucleus, but some of its part is also present in mitochondria, and we call it as mitochondrial chromosome. And if we talk about gene, so gene, it is actually the basic unit of heredity, and it is made up of DNA sequence. Now let's talk about gene cloning, which is our main topic. So production of exact copies of a particular gene or DNA sequence using genetic engineering techniques is known as gene cloning. Here is the graphical representation of gene cloning. I will explain all these steps to you so you will better understand this picture. So the process of gene cloning basically consists of 7 steps. Let's see what are those. So first step is DNA isolation of an organism. All genes of an organism are obtained. Second step is required gene is amplified using specific primers. The third step is amplified gene is closed in suitable vector. The fourth step is transformed in bacteria, E. coli or microorganism. The fifth step is larger copies of required genes are obtained via cloning and replication. The sixth step is expression of gene, translation and transcription. And the seventh and last step is purification of required protein. So these were our basic steps of our process of gene cloning. Now we will see these steps in detail. So our first step, which was DNA isolation of an organism, all genes of an organism are obtained. First of all, most importantly, for isolation of an organism, for the DNA isolation, we need a gene. But we cannot isolate a particular gene, so we have to isolate the whole DNA of an organism. And on DNA, different genes are present. So we focus on our particular gene which we need and which is also known as gene of interest. Okay, so in the next step, required gene or the gene of interest is amplified using specific primers. Primers, we basically add two primers on two ends of the gene. These primers attach to that gene, and they are forward and reverse primers, and they are end-to-end specific. And by primers we amplify the gene and we obtain multiple copies using PCR. Now what is PCR? PCR, simply it gives us copies through replication. Okay, so our next step is amplified gene is closed in suitable vector. Now after we amplify our gene, we enclose it in a suitable vector, and basically we go for plasmid vector. Plasmid vector is a circular DNA and we can cut it from anywhere. After cutting it, we attach our amplified gene to it, and once we are done with it, we attach our gene with the vector, we get recombinant DNA. Now why we call it recombinant DNA? The circular DNA, which is plasmid vector, is already combined. It is in circular shape, and we cut it and then we combine another DNA to it, which is our amplified gene. When they both combine, then collectively we call it recombinant DNA. Okay, so our next step is transformed in bacteria, E. coli or microorganism. Here we will take bacteria. Now what we do with the plasmid vector and our amplified gene, which we combined previously and we call them as recombinant DNA, we send that recombinant DNA to bacteria so that that can survive in bacteria and it can divide there. So the sending of recombinant DNA to bacteria is known as transformation. So basically transformation is the process of sending the recombinant DNA to bacteria.
Larger copies of required genes are obtained via cloning and replication. Okay, so once we send our recombinant DNA to bacteria, then as the bacteria divides, that recombinant DNA also divides, and we know that bacteria is a microorganism, and those bacteria, because it divides very quickly, since it's not a complex organism, so it divides very quickly, and as it divides, our recombinant DNA also divides and we get multiple copies. So that was the reason, basic reason of sending our recombinant DNA to bacteria. Our next step is expression of gene, which is basically transcription and translation. Transcription is the conversion of DNA to RNA, and the conversion of RNA to protein is known as translation. So at this step we are only concerned with transcription and translation. So for that, what we will do, we will add some inductive material or some inducible chemical like allolactose to bacteria, so that it will synthesize the protein of our recombinant DNA too. Here we are no more concerned with the growth of bacteria, because we already got multiple copies of our recombinant DNA. So our final step is purification of required protein. Since our work product of all this experiment was protein, so at the end we will get that protein, but we need to purify that protein. So after expression we purify the protein, and for its purification we go for affinity chromatography. Now what is affinity chromatography? Affinity chromatography can be used in number of applications, including nucleic acid purification, protein purification from cells. So here we are concerned with protein purification. So affinity chromatography separates protein on the basis of an interaction between protein and specific ligand. So this was it, and now my next groupmate will explain the next topic of gene cloning. History. In 1922, Morgan and his colleagues developed the technique for gene mapping. 1922 में मॉर्गन और उसके जितने भी कॉलीग्स थे, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी जो थी जीन मैपिंग के बारे में. In 1903, W. Sawton proposed the idea of the gene residue on chromosome. 1903 में W. Sawton ने एक आइडिया प्रपोज किया था जो था gene residue on chromosome. By 1922, they had analyzed the relative position of over 2,000 genes on the fourth chromosomes of fruit fly Drosophila. 1922 में जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के फोर्थ क्रोमोसोम के जितने भी 2000 जीन की रिलेटिव पोजीशन थी, उनको एनालाइज किया गया था. Until 1940s, there was no real understanding of molecular nature of gene. 1940 तक molecular nature of gene की कोई भी real understanding नहीं हुई थी. Between 1952 and 1966, in this year the structure of the DNA was elucidated, the genetic code cracked, and the process of transcription and translation. 1952 और 1966 के दरमियान का जो साल था, उस साल में स्ट्रक्चर ऑफ DNA को एलैबोरेट किया गया था. During 1971-73, there was a revolution thrown back into gear by introducing completely new methodology, recombinant DNA technology or genetic engineering. 1971 और 73 में जितनी भी टेक्निक्स बनी थी, उनके अलावा एक नई टेक्निक बनी जिसका नाम recombinant DNA और genetic engineering था. In 1985, Carey Mullis invented the PCR. 1985 में PCR की टेक्निक को इन्वेंट किया गया, जो किया था कैरी म्यूलिस ने. PCR has made easier many of the techniques that were possible but difficult to carry out when gene cloning was used on it on. PCR ने सब टेक्निक्स को इजी बनाया जब जीन क्लोनिंग को कैरी करना मुश्किल था. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लोन करते हैं तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इसी तरह इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो पहला है, इट हेल्प्स इनफर्टाइल कपल्स टू बियर चिल्ड्रन.
दुनिया में ऐसे हजारों कपल्स हैं जो बेबी को नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, लेकिन क्लोनिंग की वजह से वो अपनी जीन को यूज करके एक बेबी को क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गन रिप्लेसमेंट। दुनिया में ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो अपने ऑर्गन्स को लॉस कर देते हैं, आइदर नेचुरली करें या एक्सीडेंटली। सो वो वेट करते हैं कि कोई उनको ऑर्गन डोनेट कर दे और वो इसी इंतजार में इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन क्लोनिंग की वजह से वो ऑर्गन जो वो लॉस कर चुके हैं उसको दोबारा हार्वेस्ट कर सकते हैं। It allows for growing eminent individuals. अगर कोई कपल चाहता है कि उसके बेबी के आई कलर, हेयर कलर ऐसा हो, वो क्लोनिंग के थ्रू एम्ब्रियो में वो जीन इंसर्ट करेंगे तो उनको वैसा ही बेबी मिलेगा जैसा कि वो चाहते हैं। क्योर फॉर डिजीजेस। जब एक कपल अपने बेबी को खो देता है तो वो समझते हैं कि वो दोबारा बेबी को क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि क्लोनिंग के थ्रू वो अपने बेबी को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस। अ फर्दर डिवाइड। एक ह्यूमन जो सेक्सुअली पैदा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक दूसरों से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन की अपनी खसूसियात होती हैं, अपने मेथड्स होते हैं, अपना स्टाइल होता है, और जब क्लोनिंग के थ्रू ह्यूमन पैदा होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं लगते जैसा कि सेक्सुअली पैदा होने वाले होते हैं। रिस्क ऑफ म्यूटेशन। जब हम एक ही जीन के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहां पर म्यूटेशन का रिस्क ज्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज। जब भी कोई नई डिजीज आती है तो उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी कोविड आया, तो जब तक उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई तब तक बहुत सी जानें गई। इसी तरह कोई भी जब नई डिजीज आती है तो उससे डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट, उसकी जो वैक्सीन्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत टाइम लग जाता है। उस डिजीज को समझने में टाइम लगता है, फिर उसके ट्रीटमेंट को समझने में टाइम लगता है। फोर्थ, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज इसमें एक मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब हम क्लोनिंग के थ्रू बेबी को हम पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो हमें अल्लाह के खिलाफ खड़ा कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का काम है जो कि नेचुरली होता है। लेकिन जब हम लोग इसको क्लोनिंग के थ्रू करते हैं तो हम लोग अल्लाह के खिलाफ खड़े होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं जो कि अल्लाह कर सकता है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद मुर्तज़ा शाह। हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन का वो जीन क्लोनिंग है। जैसे कि मेरे ग्रुपमेट्स ने आपको जीन क्लोनिंग और उसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया है, तो अब हम जीन क्लोनिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो क्लोनिंग क्या चीज़ होती है? क्लोनिंग जो होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कापीज़ बनाई जाती हैं। उसके ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की बनाई जा सकती हैं, सेल्स की बनाई जा सकती हैं, बैक्टीरियाज की बनाई जा सकती हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो ऑर्गेनिजम्स की जीन क्लोनिंग के ऊपर है। तो जीन क्लोनिंग क्या चीज़ होती है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कापीज़ बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक मेल और फीमेल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और इसमें से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर तो होते हैं पर 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। मीन्स कि 100% डीएनए इनका आइडेंटिकल नहीं होता। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमें होता है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट हमें ज़रूरत होती है। मीन्स के मेल पेरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, और ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं और 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं। तो इस ज़रिए से जो हमारे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनको क्लोन्स कहा जाता है, और इसी तरीके से हमने डोली शीप की क्लोनिंग की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो क्लोनिंग की गई थी उसके ज़रिए से हम पढ़ेंगे। डोली शीप क्या थी? डोली वाज अ फीमेल फिन डॉरी शीप। एक फीमेल फिन डॉरी शीप थी एंड द फर्स्ट मेमल क्लोन फ्रॉम एन अडल्ट सोमैटिक सेल।
जो और उसकी क्लोनिंग की गई फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या चीज़ होती है? सोमैटिक सेल वो सेल्स होती हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज और टिश्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन और माइटोटिक डिवीजन के प्रोसेस के जरिए से। इट वाज बोर्न ऑन जुलाई 5 1996 एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है। द नेम डॉली केम फ्रॉम अ सजेशन बाय द स्टॉकमैन हु हेल्प्ड हर बर्थ। एक स्टॉकमैन मैन का नाम का बंदा था जिसने इसकी बर्थ में हेल्प की थी इन ऑनर ऑफ डॉली पॉल्टन, बिकॉज इट वाज अ मेमोरी सेल दैट वाज क्लोन। एक मेमोरी सेल था जिसकी क्लोनिंग की गई थी। Her birth was announced on February 22, 1997. She was originally code named 6LLS. इसका जो coded name था वो 6LLS था। Process of Dolly production. Dolly was born on 5th July 1996 and has three mothers. इसकी तीन mothers थी. One provided the egg. एक mother से हमने egg लिया, another DNA, दूसरी mother से हमने DNA लिया, and a third carried the cloned embryo to term. और third के अंदर हमने embryo को implant किया, ठीक है, जिसमें हमने उसने offspring दिया डोली के नाम का। She was created using the technique of somatic cell nuclear transfer. इस तो हमने अंजाम दिया सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की तकनीक के जरिए से। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT। द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक बॉडी सेल इज ट्रांसफर्ड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लिएटेड एग, एन एग दैट हैज इट्स ओन न्यूक्लियस रिमूव्ड। हमने फर्स्ट मदर से एग लिया, ठीक है, उसमें से हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, तो उस सेल को हम न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल जो होते हैं जिनके अपने न्यूक्लियस रिमूव कर दिए जाते हैं तो उनको न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक बॉडी सेल इज ट्रांसफर्ड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लिएटेड एग। और सेकंड मदर से जो हमने सोमैटिक सेल लिया, सोमैटिक सेल, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस था उसको हमने इस फर्स्ट वाली मदर के सेल के अंदर इम्प्लांट करा दिया। वंस इनसाइड द एग, जब वो एग के अंदर इम्प्लांट हो चुका होगा, द सोमैटिक न्यूक्लियस इज रीप्रोग्राम्ड बाय एग साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स बिकम अ ज़ाइगोट। एग के अपने साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स की वजह से, रिएक्शंस की वजह से वो ज़ाइगोट में चेंज हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग में चेंज हो जाएगा। The hybrid cell is then stimulated to divide by an electric shock, and when it develops into a blastocyst, it is implanted in a surrogate mother. उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स के ज़रिए से स्टिमुलेट किया जाएगा और जब वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट वो बॉल ऑफ सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज कर देता है तो ब्लास्टोसिस्ट पैदा हो जाते हैं और उस ब्लास्टोसिस्ट को हम एम्ब्रियो यूट्राइन वाल के अंदर इम्प्लांट करा देते हैं और वो फिर एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। इट इज इम्प्लांटेड इनटू अ सरोगेट मदर। सरोगेट मदर मतलब जो थर्ड मदर थी उसके अंदर हम ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करा दिया। डोली हैज़ थ्री मदर्स। डोली की अब तीन मदर्स हैं। एक से हमने एग लिया, दूसरी से हमने सोमैटिक सेल लिया जिसका न्यूक्लियस हमने एग के अंदर इम्प्लांट कराया और तीसरी जो थी उसके अंदर हमने ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करा दिया। वन मदर गेव डोली हर DNA, another mother supplied an egg, and a third mother, her surrogate mother, gave birth to her. Steps involved in the production of dolly. Enucleate the egg produced by a Scottish blackface Eve female sheep. Treat the Scottish blackface Eve with gonadotropin releasing hormone GnRH to cause them to produce oocytes ready to be fertilized for arresting the oocyte or egg at metaphase of the second meiotic division meiosis II. जो कि हमने एग लिया था फर्स्ट मदर से उसके ऊपर gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जाएगा टू प्रोड्यूस oocyte मींस कि वो एग प्रोड्यूस करे, ठीक है। Plunge a micropeptide into the egg over the polar body and suck out not only the polar body but the haploid pronucleus within the egg। और जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर से हमने न्यूक्लियस रिमूव किया वो माइक्रोपेप्टाइड के जरिए से हमने रिमूव किया, ठीक है। Fuse each enucleated egg with a diploid cell growing in culture, ठीक है। सेकंड स्टेप इसका ये था। Cells from the mammary gland of an adult Finjoris Eve are grown in tissue culture। जो कि हमने सेकंड मदर की मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया था उसको हमने कल्चर के अंदर ग्रोथ के लिए हमने रख दिया था। डोनर सेल्स एंड इन्यूक्लिएटेड एग रेसिपिएंट सेल्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन कल्चर। उन दोनों को हमने अब इकट्ठे करके कल्चर के अंदर रख दिया। द कल्चर्स आर एक्सपोज्ड टू पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कॉज देयर रिस्पेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स टू फ्यूज। अब वो उस न्यूक्लियस को और जो फर्स्ट मदर से हमने एग न्यूक्लिएटेड सेल जो बन गया था हमारा उसको हमने फ्यूज कराना है, ठीक है। स्टिमुलेट द रिजल्टिंग सेल टू बिगिन माइटोसिस बाय मिमिकिंग द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हमारी शुरू हो जाएगी। कल्चर द सेल्स until they have grown into a morula solid mass of cell। उसकी हम कल्चर उसको करते रहेंगे उस सेल को जब तक वो मोरुला सॉलिड मास ऑफ सेल में चेंज नहीं हो जाता एंड और इवन इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट में चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। ट्रांसफर सेवरल ऑफ दीज इनटू द यूट्रस ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। ये थर्ड मदर है जिसकी यूट्रस के हमने ये इम्प्लांट करा देना है ये वाला सेल ब्लास्टोसिस्ट। द रिजल्ट वन ईव गेव बर्थ 148 डेज लेटर टू डॉली। और 148 डेज के बाद वो जो वन ब्लैकफिश ईव थी हमारी वो गेव बर्थ दे देगी डॉली को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ये है कि जो हमने मेमोरी ग्लैंड सेकंड मदर के मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया था तो उस टाइम सेल जो था हर सेल जो होता है, ठीक है, स्किन सेल हो कोई भी सेल हम लेते हैं तो वो एक टिश्यू में चेंज हो चुका होता है।
तो उस टाइम जो होता है उस सेल की वो प्रॉपर्टीज नहीं रही होती जो कि एक एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर हम कोई सेल लेते हैं तो उसके सेल की हर प्रॉपर्टीज होती है कि वो सेल के अंदर ये प्रॉपर्टीज जो होंगी कि वो लंग्स में चेंज हो जाए, किसी मुख्तलिफ टिश्यूज में चेंज हो सकता है, ठीक है, नोज में चेंज हो सकता है, ये वो चेंज हो सकता है। तो उस सेल के अब हम उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल लेंगे अगर तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होगी क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड के अंदर चेंज हो चुका है और उसका काम जो है वो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है। तो उस सेल को हम एक स्टार्वेशन मोड में रखते हैं, स्टार्वेशन मोड में रखने की वजह से वो डॉर्मेंट हो जाता है और उसकी जो होता है रिवर्स मोड शुरू हो जाता है। उस रिवर्स मोड की वजह से सेल दोबारा उसी एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर आ जाता है और उसकी वो प्रॉपर्टीज सारी की सारी वापस आ जाती हैं और उसके बाद हम फ्यूजन कराते हैं उस न्यूक्लियस की टी न्यूक्लिएटेड सेल के साथ जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था और फिर इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए हम उनकी फ्यूजन कराते हैं और वो फिर ब्लास्टोसिस में चेंज होते हैं और उस ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट कराया जाता है थर्ड मदर के अंदर। तो डोलिस की प्रोबेबिलिटी क्या थी? सेल्स टेकन फ्रॉम अ 6 year old फिनिश डोरिस ईव एंड कल्चर इन लैब, ठीक है, 277 cells then fused with 277 unfertilized eggs each with the nucleus removed। 277 सेल्स को हमने 277 एक्स के साथ फ्यूज कराया, फर्टिलाइज कराया, ठीक है। 29 वायबल रिकंस्ट्रक्टेड एग सर्वाइव, उनमें से 277 में से 29 ही थे जिनकी एग सर्वाइव कर गए एंड वर इम्प्लांटेड इन ब्लैक फिश टीथ और हमने एक थर्ड मदर के अंदर उनको इम्प्लांट किया। वन गेव बर्थ डॉली और उन 29 में से भी सिर्फ एक मदर ने डॉली की प्रोडक्शन दी, ठीक है। लाइफ ऑफ डॉली, डॉली की लाइफ क्या थी? डॉली लिव्ड हर एंटायर लाइफ एज अ रोजलिन इंस्टीट्यूट इन मैडलॉथियन। देयर शी वाज ब्रेड विद अ वेल्श माउंटेन रैम, उसकी ब्रीडिंग कराई गई वेल्श माउंटेन रैम के साथ एंड प्रोड्यूस 6 लैम्स इन टोटल, उसने 6 बच्चे पैदा किए। हर फर्स्ट लैम नेम बोनी वाज बोर्न इन अप्रैल 1998, उसकी बर्थ हुई द नेक्स्ट ईयर। डॉली प्रोड्यूस्ड ट्विन लैम्स सैली एंड रोजी, नेक्स्ट ईयर उसने दो और बच्चे पैदा किए, सैली और रोनी के ट्विंस थे दोनों एंड शी गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स लूसी, डार्सी एंड कॉटन इन 2000। इन लेट 2001 एट द एज ऑफ 4 डॉली डेवलप आर्थराइटिस, डॉली को आर्थराइटिस हो गया था एंड बिगेन टू वॉक स्टिफली, और बड़ी मुश्किल से वो चलती थी। देयर दिस वाज ट्रीटेड विद एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के जरिए से ट्रीट भी किया जा रहा था उसका। डेथ किस तरह हुई डॉली की? ऑन 14 फरवरी 2003 डॉली वाज एथनाइज्ड एक्ट ऑफ पुटिंग एन एनिमल टू डेथ बिकॉज शी हैड अ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज। उस टाइम उसको एक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज, एक सीरियस लंग डिजीज हो चुका था एंड सेवरल सीवियर आर्थराइटिस भी हो चुका था। A fin Doris such as Dolly has a life expectancy of around 12 years। मिनिमम इनकी 11 to 12 इयर्स जो इस कॉलोनी के जरिए से पैदा होती हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी 11 to 12 इयर्स एज एक्सपेक्ट की जाती है, बट डॉली लिव 6.5 इयर्स, लेकिन डॉली जो थी 6.5 इयर्स सर्वाइव कर पाई। अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन शोड शी हैड अ फॉर्म ऑफ लंग कैंसर कॉल्ड ओवाइन पुल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा व्हिच इज फेयरली कॉमन डिजीज ऑफ शीप, जो कि शीप्स का कॉमन डिजीज है ये वाला, एंड इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस ASRV, और ये जो होता है रेट्रोवायरस की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान लाई है। जैसा कि मेरे ग्रुप मेंबर्स ने जीनोम क्लोनिंग के इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हिस्ट्री और जीनोम क्लोनिंग की एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, तो फर्दर हम इसकी अब एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन की फील्ड को, एग्रीकल्चर की फील्ड को, जीन थेरेपी के अंदर किस तरह से जीनोम क्लोनिंग यूज़ कर सकते हैं, जीनोम क्लोनिंग को बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह यूज़ किया जाता है और रिसर्च में भी इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन जो सी है वो हमारी है मेडिसिन। बेसिकली जीनोम क्लोनिंग जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है इन दी प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। अब आपकी बॉडी का कोई भी अगर जीन्स इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम जीनोम क्लोनिंग कहते हैं। जीनोम क्लोनिंग में बेसिकली हम जीन थेरेपी कर रहे होते हैं, जैसा कि एक डिजीज जैसे लिखा हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये डिजीज जो सा है वो आपके स्टमक को इन्फेक्ट करता है, वो आपके म्यूकोस को इन्फेक्ट कर रहा होता है और आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है। अगर आपका कोई स्टमक इन्फेक्ट हो रहा है तो बेसिकली वो आपके जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो निज़ाम होता है वो उसको इन्फेक्ट कर रहा होता है। कोई भी फूड अगर आप इनटेक करते हैं तो स्टमक आपका इस काबिल नहीं होता कि उसको डाइजेस्ट कर दे, वो उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जीनोम क्लोनिंग को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम CFTR मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्दी कॉपीज बनाते हैं और उसको हम रिप्लेस करते हैं इन्फेक्टेड जीन्स के साथ। CFTR जो बेसिकली जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन होती है, जिसका काम होता है कि बॉडी के अंदर जो से सेल्स हैं उनके इनसाइड दी सेल्स एंड आउटसाइड दी सेल्स सॉल्ट की रेशियो को मेंटेन करना होता है। सो जो ट्रीटमेंट हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज करते हैं वो हम जीनोम क्लोनिंग का कर रहे होते हैं। अगला जो हमारा है जीन थेरेपी।
जीन थेरेपी के अंदर भी हम यही बेसिकली कर रहे होते हैं कि हम हेल्दी कॉपीज को बनाते हैं, हेल्दी कॉपीज जीन्स की बनाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं इन्फेक्टेड जीन्स के साथ। अब कुछ थेरेपिस्ट होते हैं कि वो ये करते हैं कि इन्फेक्टेड जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन्स के साथ, और कुछ थेरेपिस्ट ये कर रहे होते हैं कि वो सिंपली जो से इन्फेक्टेड जीन्स होते हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का जीन्स इन्फेक्ट हुआ है, कि हम उसको कौन सी ट्रीटमेंट उसके लिए सूटेबल है। क्या हम उस जीन्स को इनएक्टिव कर दें और हमारी बॉडी को रिएक्ट तो नहीं करेगी उस वक्त वो सूटेबल है। अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर हम उसको जीनोम क्लोनिंग के थ्रू उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी कॉपी से। जीनोम क्लोनिंग ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम लंग्स कैंसर डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कैरिप्टे डिजीज को, ब्लड कैंसर को, इन सब डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। इन डिजीज से जो पहले पेशेंट्स होते थे वो मोस्टली डाई हो जाते थे जीनोम क्लोनिंग टेक्निक से पहले। अब क्या हुआ कि अब ऐसे पेशेंट एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर होता है। नेक्स्ट जो सी एप्लीकेशन है वो है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के नाम जीनोम क्लोनिंग को ऐसे यूज कर रहे होते हैं जैसे एक साइनोबैक्टीरिया है, वो क्या एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी उसको कहा जाता है। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, नाइट्रोजन की मकदार जो सी होती है उसको फिक्स कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू दी प्लांट्स नीड्स। अब नाइट्रोजन जो हवा के अंदर है वो ऑलमोस्ट 78% होती है। अब हमारे प्लांट को इतनी 78% नाइट्रोजन की नीड नहीं होती, तो उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अलहदा नीड है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को अलहदा नीड्स है। तो ये प्लांट्स की नीड्स के ऊपर साइनोबैक्टीरिया उसके नाइट्रोजन फराहम कर रहा होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करने से क्या हुआ कि हमने क्रॉप्स की ऐसी प्रोडक्टिविटी हासिल कर ली जिसकी रेशो बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर हमें किसी भी किस्म का फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता। उस वो क्रॉप्स मोर हेल्दी होती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रॉप्स। बेसिकली हम एक ऐसी क्रॉप बनाने में कामयाब हुए जो केमिकल फ्री होती है। अगर हम देखें इन दी प्रेजेंट टाइम 70 to 75% जो फूड्स हमारी मार्केट में दस्तयाब है वो जेनेटिकली मॉडिफाई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीनोम क्लोनिंग किस हद तक हमारी लाइफ में एंटर हो चुकी है। नेक्स्ट जो सी एप्लीकेशन है वो है जीनोम क्लोनिंग इन रिसर्च। हम जीनोम क्लोनिंग को रिसर्च में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हम कोई भी जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दी जीनोम सीक्वेंस। हम किसी भी अननोन जीन्स का फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्टोम की एंड प्रोटियोम की कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम बेसिकली द होल सेट ऑफ आरएनए होता है जिसके अंदर हम कोडेड भी लेते हैं एरिया एंड नॉन कोडेड दोनों ले रहे होते हैं। प्रोटियोम इज द होल सेट ऑफ प्रोटीन होता है, हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को भी स्टडी कर रहे होते हैं, ये हम रिसर्च के अंदर कर रहे होते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है वो अबाउट है बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह यूज करते हैं। हम अब क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करते हैं फ्रॉम द क्लोन जीन्स। मतलब हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बना सकते हैं, हम वैक्सीन बना सकते हैं फॉर द डिफरेंट डिजीजेस। लाइक वैक्सीन हमने हेपेटाइटिस बी की बनाई हुई है, हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बना रहे होते हैं। हम ऐसी एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो एग्रीकल्चर की फील्ड में इंक्रीज लेके आए, उसकी हेल्थ के अंदर इंक्रीज लेके आए। हम हेर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड फ्री प्लांट्स बनाने में कामयाब हो गए बायोटेक्नोलॉजी और जीनोम क्लोनिंग को यूज करते हुए। अगर हम कुछ जीनोम क्लोनिंग के एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हमने क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो नॉन क्राइन अनियंस बनाया है। बेसिकली जो सिंपल अनियन होता है जब हम उसको कट करते हैं तो उसके अंदर जो सा क्राइन एंजाइम होता है वो इन दी एयर रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आंखों से पानी आने लग जाता है। जो नॉन क्राइन एंजाइम्स है जब हम उसको कट करते हैं तो अनियन एंजाइम्स इनएक्टिव होता है, वो हवा के अंदर रिलीज ही नहीं होता। तो फर्स्ट जो हमें इससे फायदा हुआ कि हमारी आंखों से पानी नहीं आता। सेकंड, नॉन क्राइन अनियंस जो है वो मोर हेल्दी हैं एज कम्पेयर टू सिंपल अनियंस। पर्पल टोमेटोज हमने बनाए जिससे हम क्या करते हैं, हम कैंसर से महफूज हो जाते हैं। इनके अंदर कैल्शियम एंड विटामिन सी बहुत ज्यादा मकदार होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टोमेटोज। हमने ऐसी कैरेट्स बनाई जो से हमें ओस्टियोपोरोसिस डिजीज से सेव कर देती हैं, उसके अंदर मोर कैल्शियम होता है। बेसिकली ओस्टियोपोरोसिस ऐसा डिजीज है जिसके अंदर हमारी बोन्स बेहद वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती हैं कि इवन हम अगर बेंड भी हों तो हमारी बोन ब्रेक हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, या हम कपिंग भी करें तो हमारे में इंटरनल फ्रैक्चर हो सकता है। हम ऐसे प्लांट्स बनाने में कामयाब हो गए जो से अपने रूट से अनपोल्यूटेड वाटर पोल्यूटेड वाटर लेंगे और एयर के अंदर जब उसको रिलीज करते हैं तो वो एक साफ वाटर की तरह रिलीज करते हैं। हम गोल्डन राइस बनाने में कामयाब हो गए। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है कि एक बीटा कैरोटीन होता है जो उसको गोल्डन कलर दे रहा होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन की इनरिचमेंट होती है, विटामिन ए इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इससे ये होता है कि हमें डिफरेंट फूड्स नहीं लेने पड़ते डिफरेंट विटामिन के लिए। गोल्डन राइस के अंदर मोस्टली हर तरह का विटामिन होता है।
अगर मैं अपने टॉपिक को समराइज करूँ तो जीनोम क्लोनिंग जो एक है रेवोल्यूशनरी टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको मेडिसिन में यूज़ किया, एग्रीकल्चर में यूज़ किया, बायोटेक्नोलॉजी में, रिसर्च में हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज लेके हमने मेडिसिन बनाई जिससे ऐसी डिजीज थी जिससे हम पहले मर जाते थे, हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंजॉय किया थ्रू जीनोम क्लोनिंग से। एट दी एंड ये रेफरेंस लिंक्स हैं जिधर से हमने ये कंटेंट से बनाया, हेल्प ली है। और थैंक यू वेरी मच।